Good morning, students. Today we are going to start our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This is the second part of this chapter. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. In the last part, we learned that when narrator examined the situation, then he found that most of the instruments of pumping water had been damaged. But suddenly he remembered that he had a spare electric pump, and fortunately it did work. With the help of that pump, they would succeed to pump out the water from the boat. It was the day of January 3rd, and the water level was under control, and they took 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main ribs frames were smashed down to the keel. Tremendous means great, huge, and keel, it is a long piece of wood along the bottom of a ship which helps it to keep up straight. When the narrator observed that there was a tremendous leak below the water line, and on checking he found that most of the boat's main rib frames, they had been destroyed. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और नरेटर कहता है कि अब उस होल स्टारबोर्ड के पूरे सेक्शन को, पूरे पार्ट को होल्ड अप करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस के. We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से उन्होंने स्ट्रॉन्ग वेव्स को फेस करना स्टार्ट किया था तो उन्हें लगभग 15 आवर्स हो गई थी स्ट्रगल करते हुए. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. अब वेव वॉकर इस कंडीशन में नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पर आसानी से पहुंच जाए. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. He checked the chart and calculated all these things, and he found that a few 100 kilometers to the east there were 2 small islands. One of them, Isle Emerson, was a French scientific base. As per the French scientific base, there was an island which named Isle Emerson. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. नरेटर कहता है कि भी इतने वोस्ट ओशियन के अंदर आइल एमस्टिम जो एक आइलैंड था, और जैसे कि हम साइंटिफिकली देखें तो फ्रेंच का एक बेस था. आइल एमस्टिम एक छोटा सा आइलैंड इतने बड़े वास्ट ओशियन के में एक सुई की नोक की तरह है, और वो अब उन्हें लग रहा था कि भी वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड so we could hoist sail. Here abated means became less furious. और तब तक विंड और जो सीज का जो लेवल है वेव्स का, जब तक वो कम नहीं हो जाता तब तक वो अपना जो सेल है उसको खोल नहीं सकते थे. Our chances would be slim indeed. उसे लगा कि उनके बचने के चांस बहुत कम है वहाँ तक पहुँचने के. The great wave had put our auxiliaries engine out of the actions. और जो ग्रेट वेव्स थी, जो ह्यूज वेव्स थी, उन्होंने उनके सेकेंडरी इंजन को भी काफ़ी ख़राब कर दिया था. On January 4th, after 36 hours of continuing pumping, we reached the last few centimeters of water. It was the day of January 4th, and they were continuing pumping the water for last 36 hours. Now they reached to the लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर. अब उन्हें लगभग 36 घंटे हो गए थे लगातार पानी को बाहर निकलते हुए, और अब कुछ एक सेंटीमीटर वाटर ही पानी बोट के अंदर बचा हुआ था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब उन्हें बस जो पानी अंदर आ रहा था उसी को आने से रोकना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. मेन मास्ट पर वो अपना सेल नहीं चढ़ा सकते थे.
pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. क्योंकि अगर rigging here means rope that balance the mast, क्योंकि ropes अगर वो यूज़ करते तो जो उनकी शिप का टूटा हुआ भाग है वो शिप रस्सियों के दबाव से, रोप्स के दबाव से वो अलग हो जाता. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. इसलिए उन्होंने स्टॉर्म जिब का ही यूज़ किया और उसी के साथ आगे बढ़ते गए और उस डायरेक्शन में जहाँ उन्होंने सोचा कि भाई 2 आइलैंड्स हो सकते हैं. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. His wife found some corned beef and biscuits and they ate first time in almost 2 days. और उन्होंने पहली बार 2 दिनों के अंदर पहला भोजन खाया. But our respite was short lived. But जो हमारा रेस्टिंग टाइम था वो थोड़े टाइम के लिए था. At 4 PM black clouds began building up behind us. लगभग 4 बजे नरेटर क्या देखता है कि भी उनके पीछे से दोबारा से डार्क क्लाउड्स उनको कवर करने लग गए हैं. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स. विंड की जो स्पीड है 40 नोट्स हो गई है. एंड सीज वर गेटिंग हायर. और जो सी का लेवल था वो भी बढ़ता जा रहा था. द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉय थ्रू आउट द नाइट. पूरी रात जो वेदर कंडीशंस है वो डेट्रॉयड रोस्ट से रोस्ट होती चली गई. बाय द डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेंस्ट डेस्परेट. और 5 जनवरी तक उनकी सिचुएशन फिर भी निराशाजनक ही रही. When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" जब नरेटर बच्चों को कंफर्ट करने के लिए अंदर गया तो जॉन ने पूछा क्या हम मरने जा रहे हैं डैडी. I tried to assure him that we could make it, but the narrator assured them positively that they could overcome all the difficulties. But Daddy, he went on, we are not afraid to die if we can all be together. You and Mummy, Shu and I. But the boy said that they never think to die. They can't be die if they all be together. If they all be together, if the narrator and his family is together, they're never afraid to die. I could find no words with which to respond. नरेटर कहते उसके पास वर्ड्स नहीं थे वो कैसे रिप्लाई दे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन determined to fight the sea with everything I had. और इन्हीं वर्ड्स ने नरेटर को इतना डिटरमिन कर दिया कि उसके को लगा कि भी जो कुछ उसके पास है वो सी के साथ अब मुकाबला करेगा, फाइट करेगा टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओन कमिंग वेव. बट राइट साइड वाली जो बोर्ड था वो वीक हो चुका था. उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नरेटर ने डिसाइड किया कि भी अब उसे बाहर की तरफ उछाल देना चाहिए. विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओनकमिंग वेव. जहाँ से लगातार वेव्स अंदर आ रही थी उसे किसी न किसी चीज़ से बांध देना चाहिए. एंड इट बाय यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक पैरल्स ऑफ पैराफिन. और इसके लिए उसने नाइलॉन की जो रस्सी थी उसके साथ साथ 22 लीटर वाले जो पैराफिन ऑयल के बड़े बड़े ड्रम थे उनका यूज़ करते हुए जो स्टारबोर्ड वाली साइड कमज़ोर हो गई थी उसको बांध दिया. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. दोनों बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. क्योंकि जैसे जैसे शिप आगे की ओर बढ़ रहा था वेव्स भी जो उस शिप से टकरा रही थी तो जो नीचे नीचे जो टिम्बर्स टूटे हुए थे वहाँ से पानी अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. हमने सोचा कि भी अब हमारा एंड बिल्कुल नज़दीक है. बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग. बट वे वोकर स्ट्रगल्ड. वो स्टॉर्म से बाहर निकली और सुबह की बात है जनवरी 6 की. विंड ईजिंग, विंड स्लो होना स्टार्ट हो गई. I tried to get a reading on the sextant. मैंने sextant पर पढ़ने की कोशिश. Here sextant means an instrument for measuring angles and distance.
But in the chart room, I worked on wind speed, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. Here, course means direction, drift means current of the wind. अब नरेटर ने विंड की स्पीड पर काम किया, वो कितनी तेज़ी से चल रही उस पर काम किया, और वाटर लेवल कितना था उस पर काम किया। टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी पोजीशन को ये देखने के लिए कि भी वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियंस एंड लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। But Wavewalker rode out of the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. But जो Wavewalker है वो स्टॉर्म से बाहर निकली। 6 जनवरी की सुबह की बात है। विंड ईजिंग होता है टू स्लो, विंड की जो स्पीड है वो स्लो हो गई, और नरेटर ने सेक्सटेंट पढ़ने की कोशिश की। सेक्सटेंट मीन्स हेयर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड distance. Back in the chart room, I worked on wind speed, changes of course, drift and current in an effort to calculate the position. Narrator says that after that he tried to know about the direction, wind speed, changes of course, drift and current to calculate their position. Narrator कहता है कि इसके बाद वो चार्ट रूम में गया, विंड की स्पीड कितनी है, कौन से वे से जाना है, वेव्स का कितना स्पीड है, इन सभी की कैलकुलेशन करने की उसने कोशिश की ताकि वो अपने राइट सिचुएशन का पता लगा पाए। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। केवल इतना ही मैं कर पाया कि भी हम कहीं ना कहीं 1,50,000 किलोमीटर ओशियन का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और नियर अबाउट 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड अस, जब मैं सब कुछ सोच रहा था शिव आती है जिसको बहुत दर्द था, सी ज्वाइंड अस। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, लेफ्ट साइड उसके हेड की काफ़ी सूज चुकी थी। हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, स्लिट मीन लॉन्ग नैरो कट्स। नरेटर कहता है कि भी जब वो ज्वाइन करती है तो उसकी आइज़ मोटी हो चुकी, उस पर काफ़ी बड़े बड़े कट्स लगे हुए हैं। सी गेव मी अ कार्ड दैट सी मेड, उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड हियर आर सम फनी पीपल। हियर द मीनिंग ऑफ कैरिकेचर्स मीन्स स्टैटिकल पोर्ट्रेट्स और पिक्चर्स वी कैन से। जब उसने मुझे कार्ड बनाया तो उसमें कुछ एक कैरिकेचर्स जैसे कार्टून होते हैं, मैरी और मेरा कार्टून बना रखा था, और कहा दीज आर द सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसाएंगे? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसा। इनसाइड वॉज ए मैसेज, इनसाइड वॉज ए मैसेज ओ हाउ आई लव यू बोथ, उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें था दैट द गर्ल लव्ड हर पेरेंट्स, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, सम हाउ वी वुड ओवरकम दैट सिचुएशन। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, नरेटर कहता है बार बार मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम उसको खो चुके थे। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, हम एक स्पेयर वन यूज़ कर रहे थे जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए बिल्कुल ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करंट्स विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडिया। हियर द नरेटर सेज दैट ही मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मीन टू से अगर वो मैग्नेटिक वेरिएशंस करेक्ट नहीं दे रहा था बट उसके लिए फिर भी उसने एफर्ट्स किया, एस्टिमेट लगाया टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के इस पार्ट में वेस्ट की तरफ से हवाएं चल रही थी उनका पता लगाया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अबाउट द कोर्स ऑफ 185 डिग्री, लगभग 2 बजे शाम के मैं डेक पे गया और लैरी को कहा कि भी 180 डिग्री 5 पर वो अपनी डायरेक्शन को
इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, इस बात से मैंने उनको एश्योर किया, आई डिडंट फील पर्सनली, आई डोंट फील दैट आई वॉज राइट, but he could expect to see the island at about 5 p.m. But I imagined that we could find that Amsterdam Island at near about 5 p.m. लगभग 5 बजे हम उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे, ये मेरा अनुमान था. Then with a heavy heart I went below, मैं नीचे गया. Climbed on my bunk, मैं अपने सोने वाली जगह पे चढ़ गया. And amazingly and surprisingly dozed off, मुझे नींद आ गई. When I woke it was 6 p.m. जब मैं जागा तो लगभग 6 बज चुके थे. And growing dark, अंधेरा भी काफ़ी हो गया था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता था हमने आइलैंड को मिस कर दिया होगा. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न विंड्स. नैरेटर कहता है हमने सेल को भी पीछे छोड़ दिया और अब उन्हें कोई भी होप नहीं थी कि वह वेस्टर्न विंड्स में वापस जाएं. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Tousled head means untidy hairs. कुछ टाइम के बाद मेरे बंक के सामने एक बिखरे बालों वाला मेरे सामने आया. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind me. She उसके पीछे खड़ी थी. तभी जोनाथन कहते क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ. Why am I getting a hug now? मुझे हग क्यों करवाना अब? Because you are the best daddy in the whole world and best captain in the world. आप best daddy in the world हैं और best captain. Not today, John. I am afraid. मुझे आज खेद है, आज नहीं. Why you must be, आपको होना चाहिए. Said Sue in a matter of fact of voice. Matter of fact means in serious voice. वो कहती है कि भी नहीं आपको होना चाहिए that you are best daddy in the world or the best captain. You found the island. आपने आइलैंड को ढूंढ लिया. What? I shouted. वो सरप्राइज नहीं कहता. What? How it happened? It is out there in front of us. ये बिल्कुल हमारे सामने था. They caused, वो ग्रुप में चिल्लाए, as big as a battleship, जैसे कि हमने एक बड़े युद्ध को जीत लिया हो. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. Rust means here rain quickly. Relief, comfort. Stark, complete. Gazed, looked intently. The narrator says that इसके बाद मैं डेक पे गया, वहाँ कुछ रिलीफ लिया और आइल एमस्टन की आउटलाइन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली. इट वॉज ओनली ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था. विद लिटिल वेजिटेशन मीन्स ओनली सम प्लांट्स एंड ट्रीज वर देयर. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. हमने वहाँ उस रात उसी किनारे पर अपना डेरा डाला. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered. और लगभग वहाँ पर रहने वाले लगभग 28 inhabitants मीन्स रेजिडेंट्स थे. उन्होंने हमें बहुत खुशी से हमारा वेलकम किया. एज दे हेल्प अस, उसी वहाँ पे आके हमारी हेल्प की. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी. इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर द नरेटर. माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब. वो लैरी और हर्ब के बारे में सोचता, उनका थैंक करता है. हु वर चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, जो हमेशा खुश रहे और एक आशावादी रहे कि भी वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे इतने डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर. एंड ऑफ मैरी, वो मैरी का भी थैंक करना चाहता है. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो इतनी मुश्किल के घड़ी में भी उस व्हील पर स्टे किया, जिसने अपनी लाइफ को सेव करने के लिए. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ए 7-year-old गर्ल, वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं. स्यू के बारे में. हु डिडंट वांट अस टू वरी, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा भी वरी नहीं होने दिया अबाउट ए हेड इंजरी के बारे में. वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसमें ब्लड क्लॉट बन गए थे, उसको रिमूव करने के लिए 6 minor operations किए गए. एंड ए 6-year-old boy who was not afraid to die. He also think about his son Jonathan, who was 6-year-old, and he was very optimistic and said they don't afraid to die if they all be together. It means that these words sum up the courage shown by the narrator, wife, children, and of course the crewmen. This story is the story of rare courage and perseverance that was shown by the narrator, crewmen, his wife, and the children. All the dangers and disaster were confronted with patience, courage, and determination. They were not afraid to die and were ready to die with their daddy and mummy together.
These things, these words shows that how much they were optimistic, cheerful in the direct test.